Hello and welcome. We are now continuing with our last practice set for this chapter, which is practice set 3.4. Okay, so there are 6 sums in this practice sets, and I'm not going to solve any of those sums for y'all. Sums को कैसे solve करना है we have seen till now, right? Exercise 1, 2 and 3, practice set 1, 2 and 3 में we've already seen how do we solve sums, how do we apply formulas, how do we think which formula to apply, how to calculate, all we have seen already, right? So I'm not going to do any of that for this practice set. What I'm going to help you all do is how do you convert this word problem into an AP, and how do you find the answer, which formula to apply, when to apply, and what will be the steps. That is how I'm going to help you all in this practice set. Okay, I'm not going to find the final answer for any of those. Okay, so let us begin with the first sum. So first sum reads, on 1st January 2016, Sanika decides to save 10 rupees, 11 rupees on the second day, 12 rupees on the third day. Okay, so you can already see the pattern now. चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? सो पहले दिन पे 1 जनवरी पे 10 रुपए सेव किए, सेकेंड डे पे यानी 2 जनवरी पे 11 रुपीज, 3 जनवरी पे 12 रुपीज. सो कैन इवन स्टार्ट राइटिंग द एपी नाउ. सो पहले दिन पे 10 रुपए, नेक्स्ट 11, next 12 and so on and so forth. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total savings? So ऐसी वो रोज सेव कर रही है पूरे एक साल के लिए. चालू कब किया? 1 जनवरी 2016 और कब तक सेव कर रहा है? 31st December 2016. तो एक साल के लिए रोज एक रुपए एक्स्ट्रा सेव हो रहा है, राइट? सो क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स, यानी ये जो टोटल होगा यानी जितने भी नंबर्स होंगे एपी में सबको ऐड करना है यानी एस एन फाइंड आउट करना है, राइट? सो दिस वन इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. लेट मी फर्स्ट राइट दिस. यहाँ पे 10 रुपीज है 1st जैन के लिए, यहाँ पे 11 रुपीज है 2nd जैन के लिए, 12 रुपीज है 3rd जैन के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड जो लास्ट नंबर होगा, whatever our last number is, that is for 31st December. Okay, great. So first I will have to write this is an AP. Okay, this is an AP, right? So this is an AP. और अगर ये एक AP है then write all the basic terms of an AP. Basic term क्या होता है? First term A is equal to 10. Next common difference is equal to D is equal to 11 minus 10 कर देते हैं. So 11 minus 10 is equal to 1. Next N क्या है? लास्ट नंबर. So लास्ट नंबर यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, और ये साल का आखिरी दिन है. So दिन में कितने साल में कितने दिन होते हैं? 365, राइट? बट ये 2016 है. This year is 2016. So 2016 was a leap year, and we know that leap year में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, राइट? So यहाँ पे n 365 के जगह पे 366 होगा. Why? This is because 2016 was a leap year. Since 2016 was a leap year. Okay? So तुम्हें क्या पूछा है? What would be her total savings? So total savings के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल सेविंग्स के लिए फॉर्मूला है SN is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d, isn't it? So just apply this formula and check if you have everything. तुम्हारे पास n है, yes, n की जगह पे 366 आएगा. Do you have a? Yes, a की जगह पे 10 डालोगे. Do you have n? Yes, 366. Do you have d? Yes, d is 1. So all the quantities you'll already know in this formula. So just substitute and you should find the final answer as. So यहाँ पे ये जो green box है ये तुम लोग fill करोगे. Okay, इसमें 3-4 steps आ जाएंगे and finally you will get SN equal to कोई ना कोई number. Okay, so this you all are solving by yourself and remember तुम लोग का आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता. Then you have to write it in statement form. Okay, so I'll write it here on the right hand side. Statement form में कैसे लिखोगे? What would be her total savings? So you will write her total savings will be rupees
जो कुछ भी आंसर तुम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो इस बॉक्स में, एंड यू विल बॉक्स अप द फाइनल आंसर. Okay, so this is how you solve the question number 1 of this practice set. It's nothing new, it's just that तुम लोग को जो कुछ भी स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया, उसमें से पहले एक एपी बनाना है. Then it is very similar to our previous practice sets. Okay, so that's your sum number 1. So till now we have seen first sum, and now we are moving on to the third sum. Okay, so the third sum says Sachin invested in a national savings certificate scheme. ओके, कोई तो एक सेविंग्स का स्कीम है, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है. इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5,000, इन सेकेंड ईयर 7,000, इन थर्ड ईयर 9,000 एंड सो ऑन. ओके, सो अगेन आई कैन क्विकली सी द एपी फॉर मी. फर्स्ट ईयर में कितना है? फर्स्ट ईयर में इट इज 5,000. सेकेंड ईयर में कितना है? 7,000. थर्ड ईयर में 9,000. Okay, and so on. So I'll put a comma and 2-3 dots. Find the total amount that he invested in 12 years. So 12 years में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये फाइंड आउट करना है. So first of all I'll write, is this an AP? 7,000 minus 5,000 2,000 हो रहा है, 9,000 minus 7,000 2,000 हो रहा है. तो consecutive terms का डिफरेंस सेम आ रहा है. So this is an AP. So first write that this is an AP, एंड नेक्स्ट इस AP के जो बेसिक टर्म्स है वो लिख दो. बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट टर्म A क्या है हमारा? 5,000. देन D कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई भी दो बाजू बाजू वाले टर्म्स को माइनस कर दो. सो आई विल डू 7,000 माइनस 5,000. सो दिस इज कमिंग टू 2,000. सो माई कॉमन डिफरेंस इज 2,000. N कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? 12 इयर्स के लिए, राइट? एक साल में एक साल में एक बार इन्वेस्ट हो रहा है और टोटल 12 इयर्स के लिए इन्वेस्ट हो रहा है. सो ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 12 नंबर्स. सो मेरा n होगा 12. ओके, सो आई हैव A, आई हैव D एंड आई हैव N. सो व्हाट विल आई डू नेक्स्ट? आई विल यूज द फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? क्या पूछा है? फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स. सो ये जितने भी नंबर है सबका टोटल फाइंड आउट करना है. उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? वी हैव द फॉर्मूला ऑफ SN, राइट? SN का फॉर्मूला लगा देना है बस. सो SN इज इक्वल टू जो कुछ भी फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दो, एंड देन एट द एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट SN इक्वल टू दैट नंबर. ओके, सो अगेन ये जो ग्रीन बॉक्स में है, आई एम आस्किंग यू ऑल टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. सो जो ग्रीन बॉक्स में दिया सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, एंड अगेन आफ्टर डूइंग दैट write the final answer in statement form. क्या होगा? Find the total amount that he invested in 12 years. So the total amount that he invested in 12 years was dash, और ये जो dash है यहाँ पे जो नंबर मिला वो लिखना है, and box it up in pencil. So I'm leaving boxes for you all to solve. Okay, so we are done with the third sum also. Very simple sum, very similar to the first sum. So now we are also done with the third sum. And now we are looking at sixth sum. Okay, so the sixth sum reads, on the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Okay, so एक place है जो triangle shape में है और यहाँ पे trees plant करने वाले हैं. Okay, trees are planted such that in the first row there is one tree. Okay, so in the first row there is one tree. In the second row there are two trees. So second row में दो trees. In the third row there are three trees. 1, 2, 3, so on and so forth. Okay. Find the total number of trees in 25 rows. तो total rows कितने हैं? 25 rows है. Okay. So again वो लोग ने total number of trees पूछा, यानी इन सबको ऐड करके क्या आना चाहिए? So better way to do this would be using AP, right? So first form an AP. पहला नंबर क्या होगा? 1, second number 2, third number 3, so on and so forth. So you will write this is an AP. These are the common steps for word problems. Okay, this is an AP and write the basic values of an AP. So यहाँ पे A क्या है? A is 1,
d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू कितने रोज है टोटल 25 रोज है राइट. सो n तुम्हारा 25 हो जाएगा. फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसे कितने रोज है 25 रोज. सो नाउ दैट यू नो ऑल ऑफ दैट पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे आएगा यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ Sn. सो Sn इज इक्वल टू राइट द फॉर्मूला हियर एंड देन पुट ऑल द वैल्यूज. a का वैल्यू डालो, d का वैल्यू डालो, n का वैल्यू डालो एंड देन solve it and you will get a number for Sn. okay, so यहाँ पे you are putting formula. always remember to write the formula. okay, formula लिखने के अलग marks होते हैं. and then you will get Sn is equal to some number right. so ये जो green box में है ये पूरा I am expecting you all to solve it by yourself. okay, and then is your answer over? No, write the answer in the statement form as your final answer. okay, so I'm writing it on the right hand side. Find the total number of trees in the 25 rows. The total number of trees in 25 rows are, जो कुछ भी नंबर तुम लोग को यहाँ पे मिला वो वहां पे डाल देना. ओके, एंड बॉक्स द आंसर इन पेंसिल. ओके, दिस इज योर सम नंबर 6. सो वी आर ऑल्सो डन विथ योर सम नंबर 6. Okay, so next we are seeing sum number 2. Okay, so the sum number 2 reads, a man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360. There is a person जिसने लोन लिया है 8,000 रुपए का और वापस कितना देने वाला है 8,000 तो वापस देने ही पड़ेंगे प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वापस देना पड़ेगा. वो इंटरेस्ट कितना है 1,360. उसको टोटल कितना देना पड़ेगा 8,000 प्लस 1,360. टोटल उसको इतना पैसा वापस देना है. ओके, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स. सो एक बार में पूरा का पूरा लोन का पैसा वापस दे रहा है क्या? नो, वो 12 छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस करने वाला है. So each installment being less than the preceding one by 40 rupees. So समझो अगर मैंने पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का दिया, so नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा पिछले वाले से कम होगा 40 रुपए से. so पिछला वाला अगर 100 रुपए था तो अगला 60 रुपीज होगा, 40 कम होगा. so हमेशा नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा वो पिछले वाले से 40 कम होगा. ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड कि पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का होगा. सो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट हैव बीन सेड एंड देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड. सो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है. सो व्हाट वी आर फर्स्ट गोइंग टू ट्राई टू डू इज राइट अ एपी. ओके, एक बार एपी लिख दिया उसके बाद वी विल सी व्हाट वी कैन हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम. सो सबसे पहली बार टोटल पैसे कितने लिए. ओके, सो टोटल amount to be repaid. वापस कितना पैसा रीपे करना है that is equal to 8,000 plus 1,360. तो ये कितना आएगा यहाँ पे 9,360. ओके, सो इतने पैसे उसको वापस करने 9,360. He has to give back this much amount. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पूछा तो हम लोग एक एपी लिख नहीं पाएंगे, बट इस हम लोग को ये पता है कि ये एपी है. कैसे पता है ये एपी है? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड स्टेटमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज. अगला इंस्टॉलमेंट पिछले वाले से 40 रुपए कम होगा. इसका मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस बताया. पिछला आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, राइट. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमको बोला है कि पिछले वाले टर्म से 40 कम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस विल बी -40. सो दैट इज वन मोर इंफॉर्मेशन वी हैव हियर इन दिस एपी. फर्स्ट वी नो इज कॉमन डिफरेंस क्या है? -40, क्योंकि वो लोग ने क्वेश्चन में दिया है वो. नेक्स्ट what else can you tell about this AP? कितने इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है. सो 12 बार वो पैसे निकालने वाला है, 12 बार पैसे रीपे करने वाला है.
सो जितना बार पैसे रीपे करने वाले यानी उतने टर्म्स है उस एपी में. सो यहाँ पे n कितना होगा, n विल बी 12 क्योंकि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देना है. एनीथिंग एल्स यू नो? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? ये क्या है? ये टोटल पैसे उसको वापस देने हैं. ओके, तो जो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगे उन सबको ऐड करके कितना आएगा, इतना आएगा. तो सबको ऐड करके आ रहा है मतलब एस, राइट, एस एन. सो ऐड करके उतना आ रहा है. सो एस एन और एन हमारा क्या है, एस 12. सो एस 12 तुम्हारा है 9360. ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन रीड किया. क्वेश्चन रीड करके हम लोग ने एपी फाइंड आउट करने की कोशिश की. बट क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो हम लोग टर्म्स नहीं लिख पाएंगे. तो दूसरे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है इस एपी के बारे में वो लिखने की कोशिश की. ओके, तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया कि अगर 8000 रुपए लोन लिया सो इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा. तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 8000 प्लस 1360. तो टोटल इतने पैसे वापस देने पड़ेंगे. हमको पता ये एपी है क्यों, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 कम होगा. सो कॉमन डिफरेंस सेम आ जा, राइट. सो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया -40 क्योंकि अगला वाला इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से कम होगा. सो माइनस करोगे तुम लोग. सो कॉमन डिफरेंस मिल गया. 12 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे इसलिए तुम लोग का n 12 हो गया. और टोटल कितना पैसा आएगा ये सब 12 इंस्टॉलमेंट्स को ऐड करके 9360. तो तुम्हारा S12 9360 हो गया. सो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ गिवन लिखा है कि क्वेश्चन में से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं. नाउ विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम व्हाट हैज बीन आस्क्ड. ओके, सो पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा. लास्ट इंस्टॉल अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बैक कैलकुलेट. क्या पूछा है देखो, गिवन क्या है देखो, और बीच में कनेक्शंस बनाने की कोशिश करो. ओके, सो दे हैव गिवन अस, दे हैव आस्क्ड अस लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12, राइट. लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12. लेट मी राइट दिस लिटिल बिलो. लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12. ओके, सो T12 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1d. n माइनस 1 होगा 12 माइनस 1 यानी 11d. सो a प्लस 11d, a प्लस 11d. सो हमें T12 के फॉर्मूला से मिल रहा है a प्लस 11d. सो अगर a प्लस 11d हमें पता होगा वी कैन फाइंड T12. सो अभी इसमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए और d चाहिए. डू वी हैव d? The answer is yes. यहाँ पे d है, राइट, -40. -40 we have as d. And a है क्या हमारे पास, a is the first term. a first term भी हमें पूछा है. So a हमारे पास नहीं है. So you have to somehow find a. अगर a मिल गया तो T12 मिल जाएगा. What do we have? We have S12. Okay. So क्या है उससे शुरुआत करते हैं. So नीचे से शुरुआत कर दिया. अभी क्या हमारे पास है, वहां ऊपर से शुरुआत करेंगे. So we have S12. ओके, S12 का फॉर्मूला क्या होता है, S12 का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d. अभी यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या है. डू वी हैव n? यस, वी हैव n as 12. सो n है 12. a हमारे पास नहीं है, n अगेन वी हैव एंड d वी हैव. एंड इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू भी हमें पता है. इसका वैल्यू है S12. तो S12 भी हमें पता है, राइट. सो अगर ये फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में S12. S12 के यहाँ पे क्या लिखोगे, 9360. 9360 क्योंकि SN क्या है, 9360. यहाँ पे भी लिखा. ओके, सो हमें ये भी पता है. सो यूजिंग दिस यू कैन फाइंड A, राइट. यूजिंग दिस यू कैन फाइंड A क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे वेरिएबल्स का वैल्यू पता है, बस A नहीं पता. सो S12 का फॉर्मूला लगा, उसमें से A फाइंड आउट करो. अगर A तुम लोग को मिल गया, इफ यू गेट A, तो तुम लोग का फर्स्ट पार्ट हो जाता है, ये मिल जाएगा हमें. एंड सेकेंडली A को तुम लोग वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तुम लोग को A प्लस 11d मिल जाएगा, जिससे तुम लोग को T12 मिल जाएगा. सो दिस हाउ यू बैक कैलकुलेट. ओके, व्हाट वी डिड हियर वाज, पहले गिवन लिख दिया, देन वी आस्क्ड क्या पूछा, जो कुछ भी पूछा उसका फॉर्मूला देखो. फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज लगेंगे चेक करो हमारे पास है या नहीं. उसमें से एक वैल्यू था, एक वैल्यू नहीं था. सो एक वैल्यू नहीं था, वी जस्ट लेफ्ट इट देयर, जो दिया है उसमें से शुरुआत किया. सो S12 का मुझे वैल्यू पता है. S12 का फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे पता चला कि बाकी सारे वेरिएबल्स मुझे पता है, सिर्फ A नहीं पता. सो यहाँ से A निकल जाएगा. यहाँ से A निकलने के बाद मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके T12 में निकल जाएगा. सो दिस इज हाउ आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सो ऑल दिस बैकग्राउंड थिंकिंग you can do on your rough page. Okay,
So now I know the steps. So first step क्या होगा? I will write Sn का formula. So my first step is write Sn का formula. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. Okay, formula लिख दिया. Now substitute क्या करोगे? Actually I always write formulas in red, right? Okay, never mind. So Sn है मेरा 9360. n by 2 is 12 by 2. 2a को मैं वैसे के वैसे लिखूंगा क्योंकि a फाइंड आउट करना है, प्लस n minus 1 यानी 12 minus 1 यानी 11 into d is my minus 40. Okay, so after solving this what am I going to get? मुझे a का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? बाकी सब तो नंबर्स है, सो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा. सो आई एम ट्रस्टिंग यू ऑल टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. ओके, सो यहाँ पे तुम लोग पूरा सॉल्व करके तुम लोग को एंड में a का वैल्यू मिल जाएगा. a इज इक्वल टू समथिंग. ओके, नेक्स्ट तुम लोग क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, तुम लोग को a मिल गया, देन यू विल पुट द फॉर्मूला फॉर T12. सो T12 is equal to a plus n minus 1 d. अगेन सब्स्टिट्यूट तुम लोग को जो जो वैल्यूज पता है. सो यहाँ पे a का वैल्यू तुम कहां से लिखोगे? यहां से a का वैल्यू लिखोगे, राइट? a प्लस n minus 1 यानी 12 minus 1 यानी 11 और d का वैल्यू क्या? minus 40. सो जस्ट सॉल्व दिस एंड यू शुड गेट t का वैल्यू. सो यू विल गेट T12 is equal to something. Again, this box I am trusting you all to solve. Okay, so after you solve this, you all also have first term, you will also have second term, sorry 12th term, last term. Okay, last term is your 12th term. So you all will write the final answer in statement form. क्या होगा? Find the amount of the first and the last installment. So you will write the amount of first installment is यहाँ पे जो आंसर है, and the amount of last installment is यहाँ पे जो आंसर आ गया, and you will box it up in pencil. So this is your sum number second. Again, it was a little tricky क्योंकि तुम लोग को थोड़ा background thinking करना था. So always have this practice of doing that background thinking on your rough page. Okay, उसको अभी से लिखना शुरू करो. Just try to back calculate. क्या पूछा है देखो, उसका फॉर्मूला लगाओ, क्या क्या वैल्यूज की जरूरत है देखो, तुम लोगों को क्या गिवन है, गिवन का फॉर्मूला लगा दो, उसमें से क्या वैल्यूज निकल रहे देखो, एंड जनरली उससे तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए. ओके, so this is your question number 2. So now we are done also with the second sum and we are seeing the fourth sum now. So the fourth sum reads, there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row and so on. So clearly मुझे यहाँ पे AP अभी दिखना शुरू हो गया, right? So let me first complete reading the sentence. Find the number of seats in the 15th row and also find out how many total seats are there in the auditorium. तो यहाँ पे दो चीजें पूछे, जनरली सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, बट यहाँ पे भी बस दो चीजें पूछे. अगेन वेरी सिंपल सम, यू कैन स्ट्रेट अवे सी कि AP कैसे फॉर्म हो रहा है. ओके, सो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में रोज ऑफ सीट्स होंगे, राइट? सो फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सो इट राइट 20 फर्स्ट. सेकेंड रो में 22 सीट्स है, सो 22 ईयर. थर्ड रो में 24 सीट्स है, सो 24, so on and so forth. Okay, so यहाँ पे मुझे AP डायरेक्टली मिल गया. So I will start writing. This is an AP और इसके फीचर्स लिख दो, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स. यहाँ पे A क्या है? A is 20, D is, let me do 22 minus 20 which is 2, and N कितने टोटल नंबर ऑफ रोज है? ऑडिटोरियम हैज 27 रोज लिखा है, राइट? सो टोटल 27 रोज है, यानी ऐसे कितने टर्म्स होंगे? 27 टर्म्स होंगे. सो n विल बी 27. ओके, सो मुझे AP मिल गया है और AP के सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिली है. ओके, अब पूछा क्या है? दे हैव आस्क्ड मी फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो. 15th रो में कितने सीट्स होंगे, यानी T15, राइट?
15th रो में कितने सीट्स है, तो ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सो एंड सो फोर्थ। 15th रो में कौन सा नंबर होगा, यानी 15th टर्म क्या है मेरा, सो T15 इज इक्वल टू व्हाट, एंड नेक्स्ट फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, तो सबको मिला के कितना आ रहा है, वो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम दे देगा, तो सबको मिला के कितना आएगा, दैट इज गिवन बाय SN। सो SN, N क्या है यहाँ पे, N इज 27, so it is the value of this. So I think if I give you all this much information, you all can put the formula of Tn and put the formula of S27. You all can use A equal to 20, D equal to 2 and N equal to 27 in these formulas, and you all can find both of them, right? So again I am not solving this further. Put the formula for both of them और ये दोनों के values find out कर दो, and again do not forget to write the final answer in statement form and box up the final answer with pencil. So this was your sum number 4. Okay, so we are also done with the fourth sum. The last sum which we are going to see is the fifth sum. Okay, so we are now beginning with the last sum of this exercise. Okay, so let me first read out the sum. Kargil's temperature. Kargil is the name of a place. Okay, कश्मीर में एक place है, कुछ सालों पहले इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर हो गया था उस जगह को लेके, so उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करूंगा। सो कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे रोज एक एरिया का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। ओके, ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, तो ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया है कि वो जो रीडिंग्स आए हैं वो सब एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. So let me put this in a bracket. Okay, next, if temperature of Wednesday was 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Again let me put this is another bracket. Okay, so ये मैंने bracket में क्यों डाला है, I'll come to that in some time. Okay, फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days. सो बाकी 5 दिन पे तुम लोग को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो किसकी तरह सम लग रहा है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो 4 consecutive terms of an AP, 3 consecutive terms of an AP, उस टाइप के जो सम्स किए थे उसी टाइप का ये सम लग रहा है। भाई क्योंकि तुम लोग को 5 टर्म्स फाइंड आउट करने, राइट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर 5 days. सो जब भी वैसे टाइप के सम्स आते हैं तब वो लोग 2 कंडीशंस देते हैं, तो 2 कंडीशंस भी दिख रहे हैं जो मैंने ब्रैकेट में मार्क करके रखा है। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे was -30 डिग्री, सो ये हो गया सेकंड कंडीशन। सो 2 कंडीशंस दी है, तुम लोग को ऑलरेडी बोला है कि ये जो रिकॉर्ड टेम्परेचर का वैल्यूज है वो सब एपी में है और तुम लोग को बाकी 5 दिन का फाइंड आउट करना है। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू द सम्स वी हैड सॉल्व्ड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। सो हमेशा पहले क्या करते हैं, वी अज्यूम एन एपी, राइट, एपी के टर्म्स को अज्यूम करते हैं। सो लेट अस अज्यूम, let the terms of the AP be, first term we'll take as A, next A plus D, next A plus 2D, next A plus 3D। कितना हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का चाहिए, राइट, A plus 4D and A plus 5D। कौन से दिन के हैं, सो A will be मंडे का टेम्परेचर, A plus D ट्यूसडे का, A plus 2D वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड दिस विल बी सैटरडे। ओके, सो सारे दिन के हमने टेम्परेचर्स के लिए एक एक वैल्यू ले लिया है। ओके, नाउ विल स्टार्ट अप्लाइंग द कंडीशंस। सो लेट मी डू दैट ऑन राइट हैंड साइड। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ओके, सो कंडीशन मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी डाल दिया। सो व्हाट्स द कंडीशन, सम ऑफ टेम्परेचर, सम यानी एडिशन, सो मैं पहले प्लस साइन डाल रहा हूं। ओके, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो मंडे का क्या टेम्परेचर है A, एंड सैटरडे, सैटरडे का क्या टेम्परेचर है A plus 5D, A plus 5D। ओके, was यानी इक्वल टू 5 more यानी +5,
5 मोर यानी +5 देन किससे ज्यादा है 5 सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे सम यानी एडिशन किसका एडिशन है टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे ट्यूसडे का क्या टेम्परेचर है A+D एंड सैटरडे का क्या टेम्परेचर है A+5D ओके so this is from our first condition so I will start taking out the brackets के बाद सब प्लस साइन है तो मैं डायरेक्टली ब्रैकेट्स को ओपन कर सकता हूँ विदाउट एनी साइन चेंज तो यहाँ पे मुझे मिलेगा A+5D प्लस A+D प्लस A+5D प्लस 5 सो कुछ चीजें कैंसिल होने वाली है यहाँ पे a है यहाँ पे भी a है सो ये a वहां पे जाके माइनस ए हो जाएगा एंड a विल गेट कैंसल्ड नेक्स्ट 5d सो यहाँ पे +5d यहाँ पे भी +5d तो ये +5d वहां पे जाके -5d हो जाएगा एंड दैट विल आल्सो गेट कैंसल्ड अगेन आई हैव अ a एंड a okay so I have a and a that will also get cancelled so what am I getting d यहाँ पे क्या बच रहा है कुछ भी नहीं यहाँ पे I have 0 कुछ भी नहीं बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड में क्या बच रहा है I am getting 1d over here and यहाँ पे +5 okay so let me take +5 on the left hand side so +5 को मैं LHS में लूंगा so what will I get d equal to -5 so let me write that d equal to -5 so मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है सारे टेम्परेचर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है राइट सो मुझे ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है तो उसमें से डी मुझे ऑलरेडी मिल गया नाउ आई ओनली नीड टू फाइंड ए अगर ए और डी दोनों पता चल गया तो मैं सारे टेम्परेचर्स को निकाल सकता हूँ राइट सो फर्स्ट कंडीशन हो गया नाउ यूजिंग द सेकेंड कंडीशन ओके सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन second condition again I have marked it in a red bracket if temperature of Wednesday is -30 temperature of Wednesday क्या है A+2D so A+2D is equal to क्या है -30 so -30 लिख दिया मैंने so this is my condition from the question now substitute यहाँ पे D equal to 5 को let me call that as 1 so d equal to 5 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा so A+2 into d के जगह पे -5 is equal to -30 और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा from 1 okay now 2 +2 into -5 will give me -10 so A plus नहीं होगा माइनस होगा +2 into -5 is equal to -10 right so -10 a -10 is equal to -30 so -10 वहां पे जाके +10 हो जाएगा so let me do this small calculation over here okay so I have got a -10 is equal to -30 so -10 को मैं वहां पे लेके जाऊंगा तो वो +10 हो जाएगा right this will go here so I will get a is equal to -30 ऑलरेडी यहाँ पे था यहाँ पे आके +10 हो गया okay we write this nicely so equal to -30 ऑलरेडी था -10 वहां पे आके +10 so -30 +10 will be a equal to -20 so this is my a okay so you all have a as well as you all have d okay so a you all have d you all have so finally क्या बचा है you will write you will substitute a and d का value over here so you will write Monday's temperature equal to a equal to -20 Tuesday's temperature equal to a plus d equal to a plus d right so -20 plus -5 so -20 minus 5 will be -25 Wednesday's temperature is equal to a plus 2d is equal to -20 minus 2 into 5 so -2 into 5 will be plus 2 into 5 will be plus 2 into -5 will be
minus 10 and minus 10, and that you are adding to plus 20, so that will give you minus 30, so on and so forth. So क्या मिल रहा है मुझे आंसर? A का वैल्यू मुझे मिल रहा है minus 20, then next is minus 20, minus 5, minus 25, then minus 30, then minus 35, so on and so forth. So this is the answer I am getting, but directly answer नहीं लिखना. Okay, right? Solve all of them one by one. Monday's temperature is equal to A is equal to value. Friday's temperature is equal to A plus 40. A का value substitute करो, D का value substitute करो, find it out and find out the temperature of each and every day and write the final answer in statement form. The temperatures on the other days are this. Okay, so that's it for this practice set. So we are also done with fifth sum. Okay, so we are done with all the sums of this practice set, and with this we have also completed our sum, also completed our chapter. So that's it for this chapter. See you guys in the next video.